हमारे ऊपर काफी रूलिंग हुई है, जैसे ब्रिटिशर से, तुगलक से और पोर्टुगीज से, काफी से, बट इंडिया ने कभी रिबेल नहीं किया। टॉकिंग अबाउट बोथ द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड पास्ट गवर्नमेंट, दोनों ने कभी कभार नोकझोंक बनी रहती थी। नहीं किया जल्दी, और ना ही इंडियन कभी किसी और कंट्री पे जाके उन्होंने कभी उनका फ्रीडम नहीं छीना। हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं जसमीत आपका स्वागत करती हूँ एनसीसी मित्र के एक ग्रुप डिस्कशन 3 में। तो आज का टॉपिक आप सभी जानते हैं, जिसमें हाउ इंडिया कैन बिकेम अ सुपर पावर। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so we are having topic today is how India can become a superpower. So let's compare it with other countries who has developed and come under a superpower country like USA, China. So it's a question that how can we become a superpower? So after comparing all the countries like USA and China, they all have a vision, a clear vision. How can they become a superpower? So the answer is how to become a superpower is to have a clear President Abdul Kalam vision, which he gives 3 vision about how India can become a superpower. So one of the first superpower, the first vision he has visualized was freedom, freedom of culture. As India has a very complex diversity. So getting freedom in it is very hard. Freedom for individual is something that we need to get superpower. And the second thing that he has talked about was development. Development is in every sector, because अगर हम developed होते, तो अगर हमारे सारे sectors अच्छे होते तो हम developed होते, मगर अभी हम developed नहीं है, we are still developing. So there are so many reasons, or there are we have to develop in all the sectors, but there were 4 things that he basically said to develop. The first one was people, second was economy, third was strength, and fourth was infrastructure and technology. So all the first 3 was very common and very usual, but the fourth one, infrastructure and technology, is something we need to understand. It's not about there are some countries like Japan. Japan don't have much resources, but it's one of the best. So many resources. So we can also become a superpower like Japan if we focus on our resource and technology. And the third thing that he visualized was India must stand up to the world. कृति India जैसे आपने अभी बोला कि अगर इंडिया के पास मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर या ये सब अगर है तो सुपर पावर बन सकता है, लेकिन अगर आप देखो तो कई सारे ऐसे देश हैं जो आर्थिक स्थिति उनकी बहुत मजबूत है, लेकिन वो सुपर पावर कंट्रीज में नहीं आते हैं, और कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, फिर वो सुपर पावर में आते हैं। स्नेहा, this is because स्नेहा दी, this is because क्योंकि हम एक कंट्री को एक फैक्टर से जज नहीं कर सकते, सिर्फ टेक्नोलॉजी करेंगे किसी कंट्री को कि वो डेवलप है तो इससे नहीं चलेगा। ऐसे काफी सेक्टर्स हैं जिनके बारे में एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा, जैसे कि मैंने पहले भी 3 इकोनॉमी। तो अगर कोई कंट्री सब चीज बेस्ट है और एक टेक्नोलॉजी में बेस्ट नहीं है तो हम उससे इतना खराब कंट्री भी नहीं ही कह सकते हैं। So technology is one of the most important factor, but not only the important factor. And the third one that he said. Hello. Yeah, Continue. you're audible. Continue, please. The third thing that Sir mentioned was India must stand up to the world, not only in defense, like we are the second largest producer of wheat, rice. Not only in primary sector, we have to stand in both, also in the secondary sector as well as the tertiary sector. Is one of the second largest producer of food all over the country in the primary sector. In the second sector, we are not developing at all. In the manufacturing sector and in the third sector, like service sector, we are developing. Like technology is coming in India, but still we need to work on it. And Don't you think that our country is developing? Like
the vision that our PM is seeing that हमारा हम लोग बोलते हैं ना, हमारे कंट्री में अभी हमारे यहाँ मेड इन इंडिया चल रहा है, क्लियर विजन हो रहा है कि अब हमें करना क्या है, सुपर पावर बनना है। और हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम वेपन्स में भी काफी एडवांस होते जा रहे हैं। तो क्या ये मेक इन इंडिया में नहीं आ रहा, क्या ये सुपर पावर? America is a $21 trillion economy, whereas India still is aiming to become a $5 trillion economy by 2024. So I'll continue from here. Presently, India is considered one of the emerging powers, superpowers of the world. Still not have become the superpower, or we are still becoming a emerging superpower. So how to focus on to become a superpower? So see, basically we have to focus more on economy. We have to basically focus more on science and technology. We have to basically focus more on infrastructure. Like we have to like जो ऑफिसर्स हैं या जीसीज हैं, जो कैडेट्स हैं, जेंटलमैन कैडेट्स, वो अपने भेजते हैं यहाँ पे फॉर यू नो स्टडी एंड ऑल, बिकॉज अपने इंडियन ओशन रीजन में वी हैव द बेस्ट मिलिट्री टेक्निक, वी हैव द बेस्ट मिलिट्री education here. And if you like अफगानिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत हेल्प की. इवन वी मेड द पार्लियामेंट, इवन मॉरिशस जो है. बेसिकली वी हैव टू फोकस मोर ऑन इंडियन ओशन रीजन, जो अभी हम लोग कर रहे हैं. बट जो अभी डिस्टर्बेंसेस जो प्लेसेस हो रही हैं, लाइक बिकॉज ऑफ चाइना, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, सो वी हैव टू फोकस मोर इंडियन सेंट्रिक थिंग्स. हमें इंडिया के अंदर ऐसा नहीं चाहिए कि लाइक वी शुड बी फोकसिंग ऑन एंटी चाइना थिंग्स को छोड़ के मोर इंडियन सेंट्रिक थिंग्स. हेट नहीं यू नो वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे हमको हेट नहीं दिखाना है कि लाइक हाँ वी आर यू नो, जैसे यूएसए के अभी प्रेसिडेंट्स जो कर रहे हैं, जो लाइक यू नो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. वी हैव टू फोकस मोर ऑन you know a better India, a better place for people living in India. Why people are making American dream, like why they are going कि हमें American dream जीना है, why can't an Indian dream? So we have to focus more कि हमें अगर एक hub बनाना है एक इंडिया को, because basically like मैंने यहाँ saying कि क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर में हम लोगों ने फोकस नहीं किया. India is the BPO hub of India, of the world. India is BPO hub of world. सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छे से फोकस हो रहे हैं. मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स आए, बहुत कुछ यू नो स्कीम्स आए इंडिया में, गवर्नमेंट्स लेके आए. फेलियर्स हो रहे हैं, बट वी एक्नॉलेज दैट, बट गवर्नमेंट इज वर्किंग अपॉन दैट. वी लिटरली सी कि 2025 या 2030 तक द यू नो वी आर 10 years behind APJ Abdul Kalam's vision India 2020, but we think by 2030 we will be able to achieve the status of superpower. Basically we have to focus on permanent council of a United Security Council. We have to make sure that we achieve that status. We have to make sure that we are in the permanent council, not in the temporary council कि हम 2 साल आ गए फिर रूल करके फिर चले गए, फिर और कोई कंट्री आ गई. We have to achieve that status, क्योंकि अगर हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वहाँ पे अगर हम परमानेंट काउंसिल में आ जाते हैं, दैट मीन्स कि हम लोग सुपर पावर के रेंज में आ जाते हैं. तो India is having the second largest population. Still, you know, United States, they are having much less population than India, but then too they are the superpower. So we don't have to think कि क्या बोलते हैं हमें population बढ़ाने से हमारा सुपर पावर बढ़ जाएगा. नहीं, not at all. We have to focus more on quality, not on quantity. अगर हम you know population को control में रखें, that will help in you know achieving the status. ग्लोबल डायस्पोरा जो अपने इंडियंस का है, उसको सुनो बेसिकली दिक्कत क्या है कि इंडियंस को यू नो दे वांट मोर. अगर इंडिया में नहीं मिलता तो वो बाहर कंट्रीज में चले जाते हैं, बाहर कंट्रीज में जाके ढूंढ लेते. दे वांट मोर यू नो थिंग्स टू एक्सप्लोर. एंड सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यू नो द क्या बोलते यू नो द थिंक टैंक ऑफ इंडिया, द नीति आयोग, हैव टू क्रिएट मोर इंडिया सेंट्रिक थिंग्स कि लोग द ब्रेन ड्रेन डोंट हैपन इन इंडिया. कि यहाँ से आप यूएसए में जाके पढ़ रहे हो, वहीं पे जाके सेटल हो गए, फिर वहीं के आप सिटीजन बन गए,
तो फिर आप वहीं के आप सुपर पावर ऑब्वियसली वहां पे जाके एक कंट्री वहीं पे जाके क्या बोलता है, अगर इतनी बड़ी क्या इंडिया इज नोन एज द द बिग हेड, और यू कैन से द India is known as the big head. Yeah, actually it is a brain drain. India, it will be India's loss. If that person comes back to India, then it will be India's gain. But it is still what you can say. It is a brain drain. It's India's loss. Yeah, it's India's loss. So basically, we have to focus more on gaining that back, gaining that power back. So we have to create more. We have to create more. Not कि number of IITs or number of IIMs. We have to create quality education in India. कि ऐसा नहीं हो कि क्या बोलते हैं, आप हाई एजुकेशन के लिए आप जाके जर्मनी में पढ़ रहे हो, आप जाके यूएस में जाके पढ़ रहे हो, कि आपको आईवी लीग मिल गया तो वहाँ पे जाके आप पढ़ रहे हो, या आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या प्रिंसटन यूनिवर्सिटी मिल गया वहाँ जाके पढ़ रहे हो। आपको इंडिया में रह के, आपके इंडिया में वर्ल्ड का आप बोला जाए आफ्टर बिफोर येल यूनिवर्सिटी, जो अभी क्या बोलते हैं वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, उससे भी पुराना नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी इंडिया में ही था, ऐसे नहीं है कि कहीं और था। सो वी हैव टू फोकस कि क्या बोलते हैं क्वालिटी एजुकेशन मिले इंडिया में, तो और फोकस हो सकता है कि इंडिया में ही जो क्या बोलते हैं जो सुंदर पिचाई जैसे लोग, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, क्यों वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, क्यों नहीं इंडिया के एमएनसीज में, क्यों नहीं इंडिया का खुद का एक एमएनसी ऐसा बन सकता है जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब हो। अलग बात है, TCS है, बट देन टू विप्रो है, बट वी हैव टू क्रिएट द ऑरा कि यही कुछ हो। आपको ये ना कि एक्सपोर्ट हो जाए। तो भारत की अगर जीडीपी देखा जाए तो इटली से बहुत कम है, लेकिन इटली की आबादी जो है वो 6 करोड़ यानी भारत की आबादी से 20 गुना कम है। इसलिए भारत जो है इटली की तुलना में पर पर्सन 5% से भी कम उत्पादन कर रहा है, लेकिन हमारी जो इंडिया है वो उत्पादन के क्षेत्र में तो ज्यादा है ना सर। जीडीपी और इसकी जो हमारी सर जीडीपी मैटर नहीं करता, लेकिन हमारा अगर सुपर पावर के देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है। जीडीपी हम लोग नहीं पढ़ पाते कि जीडीपी है क्या एंड किस चीज पे फोकस करना है। हमको फोकस करना है HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो बेसिकली बहुत मायने करता है, एंड पर कैपिटा इनकम। जीडीपी पे सिर्फ अगर हम लोग फोकस करेंगे तो जीडीपी तो हम लोग ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी आप सेक्टर में कुछ भी आप ज्यादा बना लो तो वो जीडीपी में इंक्लूड हो जाएगा। अब मैन्युफैक्चरिंग पिछले हमने बात की थी कि आप मतलब बिना एम्प्लॉयमेंट दिए भी आप जीडीपी बढ़ा सकते हैं। जॉबलेस इकोनॉमी का फायदा नहीं है। जॉबलेस ग्रोथ वैसे ही हो जाएगा, बट हमको फोकस करना है HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, की इंडिया में, क्योंकि देखो सुपर पावर अगर बनना है तो वी हैव टू क्रिएट कि इंडिया में ही सब कुछ हो, आपका चीजें भी इंडिया में बने, आप खरीदारी भी इंडिया से करो। आपको इवन जो कंट्रीज हैं, जैसे लोग डिफेंस के लिए चाइना पे फोकस्ड है, या सॉरी जो हमारे एनिमीज हैं वो चाइना पे फोकस है, लाइक पाकिस्तान है, टर्की है, ये सब जो एनिमीज हैं वो आपके चाइना पे फोकस रहती है। एंड जो एलाइज हैं जो अपने, जैसे USA हैं, UK, सो बेसिक एंड रशिया। सो बेसिकली हम लोग को ये नहीं करना चाहिए कि हमको जाके उनसे जाके डिफेंस के इक्विपमेंट्स लेना है। हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, बेसिकली वहां से हम लोग यहाँ पे आके हम लोग चीजें बना पाए। HAL जो अभी कर रही है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे फोकस कर रही है। तो अगर हमें अपनी प्रेजेंस नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, तो सर इसे कंपेयर करते हैं हम APJ अब्दुल कलाम के विजन से। उन्होंने कहा था कि हमारी जो मीडिया है वो काफी अच्छा रोल प्ले करती है, जैसे वो हमारी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो हमारे जो मीडिया है, सर ने कहा था कि हमारी जो मीडिया है वो वर्ल्ड को काफी नेगेटिविटी दिखाती है हमारी इंडिया की तरफ से। हमारी एजुकेशन से, हमारा डिफेंस खराब है, हम काफी बैकवर्ड क्लासेस हैं, हमारे इंडिया में काफी पॉवर्टी है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ यही सब है, इंडिया में काफी कुछ है, बट यहाँ के जो लोग हैं उनमें बाहर चले जा रहे हैं। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना छोड़कर वो बाहर जाके काम करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, बट हमारी मीडिया भी इस पे काफी अच्छा रोल प्ले कर रही है। और एक चीज और है सर कि अगर सरकार किसी भी तरह की जो हिंसा पर अगर नियंत्रण रख ले सर, जैसे कि जो भी अत्याचार होता है या नियंत्रण, मतलब सरकार जो है अगर किसी भी तरह की हिंसा पर नियंत्रण रख पाने में सक्षम हो जाता है, या जनता जो है, जो जनता है, अगर बिना किसी दबाव के खुद
टैक्स भरने लगे, या जो कुशलता पूर्वक न्याय और सेवाएं उपलब्ध हो जाए, तो इससे भी हमारा जो कंट्री है, जो हमारी इंडिया है, वो एक सुपर पावर में आ सकती है सर। क्योंकि ये भी हमारी एक हमारी इंडिया की डिसेबिलिटी है कि हमारे में न्याय संस्था भी अच्छी नहीं है हमारे देश में। अगर कोई भी देश समाजवादी तानाशाह क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारी इंडिया में अगर ये 3 चीजें हो जाए तो कहीं ना कहीं इससे हमारी इंडिया का जो एक ग्रोथ है वो आगे बढ़ेगा। हेलो 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 हमारा न्याय सिस्टम में हेलो हेलो भी आप जो सिस्टम में हो आप उसे नहीं कर सकते। हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, और इकोनॉमिक में भी तो और होना चाहिए। सर आवाज साफ नहीं आ रही किसी की भी। हेलो नहीं आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है आपकी अब। ओके, तो जैसा आपने कहा कि हमारा न्याय सिस्टम सही नहीं है, तो हमें इस टॉपिक को आज हमारे लेटेस्ट प्रेसिडेंट के विजन से देखना। तो उन्होंने कहा था कि आप इस सिस्टम में और आप इसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये करके आपके साथ कुछ नहीं होगा। तो हमारे जैसे हम अपना पास्ट देखेंगे इंडिया का, तो हमारे ऊपर काफी रूलिंग हुई है, जैसे ब्रिटिशर से, तुगलक से और पोर्टुगीज से, काफी से। बट इंडिया ने कभी रिबेल नहीं किया जल्दी, और ना ही इंडियन कभी किसी और कंट्री पे जाके उन्होंने कभी उनका फ्रीडम नहीं छीना। तो हमारा न्याय सिस्टम काफी अच्छा ही है, और इंडिया में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होता। आप मानते हैं कि जो हमारे स्पीच का राइट है, राइट टू स्पीक, वो जब छीन लिया जाए तो क्या हम डेवलप कर पाएंगे? जब हम अपने गवर्नमेंट को क्वेश्चन ही नहीं करेंगे तो हम क्या डेवलप कर पाएंगे? हम कैसे क्वेश्चन करते हैं? हम क्वेश्चन करते हैं कि जैसे अभी पैंडेमिक चल रहा है, लोग जाके बैठ जाएंगे और पैंडेमिक को ही सपोर्ट करते रहेंगे, तो गवर्नमेंट कैसे आपकी सुनेगी? गवर्नमेंट के पास ऐसे काफी काम है। we don't have to criticize government on everything. कुछ चीजें सोसाइटी को खुद भी करनी होती हैं, जो सोसाइटी से मांगा जाता है वो खुद करना होता है। लाइक टैक्स पेइंग गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को खुद आप फेक सर्टिफिकेट्स बना के एंड टैक्स इवेड करने के लिए बहुत चीजें आप करते हो। तो लाइक आपने फर्जी बिल बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है, आप जाके टैक्स इवेड कर देते हो। मेडिकल बिल बना देते हो, आप जाके आप टैक्स इवेड कर देते हो, जो कि आपका फर्ज होता है कि आपको टैक्स पे करना है, ठीक। एंड फिर आप बोलते हो कि हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं, फिर गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास पैसा है, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है। पहले था कि गोल्ड जितना है उसी हिसाब से हम प्रिंट कर सकते हैं मनी, बट अब एक लिमिट है कि आपके पास इतना गोल्ड है तो वी कैन प्रिंट अथाह मनी, ठीक है। आप चाहे जितना भी आप अपने क्या बोलते बना सकते हो, बट एक बजटरी लिमिट तक होता है। आप इकोनॉमिक्स अगर पढ़ोगे तो उसमें बजटरी डेफिसिट एंड उसमें आता है, तो उसमें बताते हैं कि अगर आप कर सकते हो, आप जितना भी पैसा आप प्रिंट कर सकते हो, आप अपना इकोनॉमी चला सकते हो। बट सिर्फ हमें इकोनॉमी पे फोकस नहीं करना है, बिकॉज एक इकोनॉमी सिर्फ फैक्टर नहीं है कि जो आपको सुपर पावर बनाती है। अगर इकोनॉमी सिर्फ एक फैक्टर होता तो फिर जैसे चाइना था, चाइना पहले भी इकोनॉमी अभी उसकी डूबी हुई थी पहले बीच में, सो तब भी उसको सुपर पावर बोला जाता था। बट अब उसका क्या बोलते हैं आफ्टर पैंडेमिक अभी है कि जो पॉजिटिव में सिर्फ उसी का है कि उसका इकोनॉमी पॉजिटिव में जा रहा है। बाकी जो फैक्टर्स आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अपनी इंडिया जो अभी बहुत स्लो है। अभी भी एक देखा जाए तो इलीगल कंस्ट्रक्शन हर जगह हैं। धारावी आप चले जाओ तो स्लम्स हर जगह हैं। आप हर साल एक गवर्नमेंट, हर 5 साल एक गवर्नमेंट आती है, अपने अपने लीडर्स के नाम पे अर्बन हाउसिंग सिस्टम बना के चली जाती है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से, कभी राजीव गांधी, सब बना के चले जाते हैं, बट कभी भी उस पर फोकस नहीं होता, कभी भी उस पर काम नहीं किया जाता।
अभी लाइक वी हैव टू मोर फोकस ऑन अर्बन हाउसिंग सिस्टम्स, क्योंकि अब जो है अब अपना एक जेन वाई आ रहा है, एक आपका जनरेशन वाई आ रहा है, एक नया मिलेनियल आ रहे हैं. सो वी नीड टू फोकस मोर ऑन स्ट्रक्चर ऐसा हो कि जो इको फ्रेंडली हो, जो कि आपके इन्वायरमेंट को हार्म ना करे. बिकॉज WWF की रिपोर्ट के हिसाब से है कि इंडिया में आपके वाइल्ड लाइफ जो पॉपुलेशन है वो कम हो रहा है, फौना पॉपुलेशन जो है वो कम हो रहा है. ठीक है, इवन आपके फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से भी रिपोर्ट्स आते हैं कि ठीक है थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होती है बट कंक्रीट जंगल रहा है. तो फिर ऐसा होना चाहिए कि इंडिया अकेले ने एक इंटरनेशनल लेवल पे जाके आपके सोलर एनर्जी का एक कमिटी बनाया. ठीक है, इंटरनेशनल कमिटी ऑन सोलर एनर्जी उन्होंने खुद बनाया विद द हेल्प ऑफ फ्रांस एंड अदर कंट्रीज. सो अगर इंडिया एक इंटरनेशनल लेवल पे ये कर सकती है, सो उसको इंडिया में फोकस भी करना है, इंडिया पे अप्लाई भी करना चाहिए. ये नहीं कि आपने एक इंटरनेशनल लेवल पे बना दिया, एक रेटोरिक टॉक्स कर लिया, फिर आप इंडिया में कुछ नहीं कर रहे हो. ठीक है, आपने रीवा में बनाया बट वो कई गवर्नमेंट पहले नहीं वो सब कुछ रेडी करके रखा था रीवा, तब अब जाके ये गवर्नमेंट ने फाइनलाइज किया, अब जाके बना. सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक सेकंड थिंग इज कि हम बस क्रिटिसाइज करते हैं. आप अगर गोल्डन एरा ऑफ पॉलिटिक्स एंड गोल्डन एरा ऑफ इंडिया की बात करें, नॉट टॉकिंग अबाउट शाहजहां पीरियड बट एट प्रेजेंट अभी जो अगर बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, या आप बात कर सकते हो 20 साल पहले, जहाँ पे ऑपोजिशन कई बार इंडिया के गवर्नमेंट के साथ रहती थी, चीज़ों में मदद करती थी. बट आज के अगर देखें इन 10 years में देखा जाए तो हर बार यही रहा है कि अगर कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें होती तो ऑपोजिशन कभी साथ नहीं देती, या क्या बोलते हैं टॉकिंग अबाउट बोथ द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड पास्ट गवर्नमेंट, दोनों ने कभी कभार नोकझोंक बनी रहती थी. सो वी नीड कि एक इंक्लूसिव पावर बनी रहे इंडिया. ये नहीं हो कि लाइक एक हेट प्रोवाइडिंग हेट बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनानिमसटी होनी चाहिए. यस, यूनानिमसटी होनी चाहिए बिकॉज आप अगर पहले की बात करें, यूएन में एक स्पीच देने के लिए इंदिरा गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था, अपोजिशन पार्टी के लीडर ने 77. सो अगर वैसा सिस्टम तब था, यस सर, क्या बोलते, अगर वैसा तब का था तो अब क्यों नहीं है? अब का है सब लोग एक दूसरे को गाली देते रहते. सो हमको एक इंक्लूसिव चीज, एक इंक्लूसिव कंट्री बन के रहनी चाहिए. इंडिया के कल्चर में कभी ये नहीं आया है कि आप हेट प्रोवाइड करो. कभी इंडिया में अपने एग्जिस्टेंस से अपने कभी दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक नहीं किया. उसका हर बार यही रहा है कि डिफेंस करते रहो, आप अटैक मत करो. सो अब क्यों ऐसा हो रहा है कि डिफेंस, चलो ठीक है आप इंटरनेशनल लेवल पे तो आप डिफेंस बनाए रखे हो, बट इंटरनल लेवल पे एक दूसरे को सब अटैक कर रहे हो. व्हाई दैट हैपेंस? सो बेसिकली इकोनॉमी पे अगर सिर्फ जाए तो जीडीपी तो आपकी इटली, जैसे स्नेहा जी ने बताया कि इटली में क्या बोलते हैं ज़्यादा है, जीडीपी कम है, बट देन तो वहाँ पे लिविंग कंडीशन ज़्यादा है. तो सेम अगर देखा जाए इंडिया में, अब अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में अराउंड डिफरेंट स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स और 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं. तो अगर ऐसा है, सो अगर उसी में अलग अलग स्टेट्स को देखें, लाइक केरला हो गया, केरला में HDI इंडिया में सबसे ज़्यादा है, इंडिया के एवरेज लेवल से भी ज़्यादा है केरला का HDI. सो वहाँ पे क्यों ऐसा है कि HDI लेवल ज़्यादा है? व्हाई नॉट वी आर फोकसिंग? Yeah, continue. So Okay. Okay. तो हमें इस टॉपिक को आर लेट प्रेसिडेंट के विजन से जोड़ना था. तो उन्होंने कहा था कि यू कांट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. सो इस टॉपिक में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमें डेवलप करना है तो अपने खुद के पीपल से करना है, खुद से करना है. एंड as Abhita mentioned कि हमारे पास रिसोर्स तो है बट वी डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, हम उसका यूज नहीं कर पा रहे. इंडिया के पास तो वाटर रिसोर्स है, विंड रिसोर्स और सब कुछ है, बट वी जस्ट हैव टू यूज इट. अभी देखा जा रहा है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 पे आया है अभी. तो क्या ये नहीं देखा जा सकता कि हम लोग, हमारी गवर्नमेंट ठीक से यूज नहीं कर रही है? हमारी गवर्नमेंट ही थोड़ी सी, हम लोग जो गवर्नमेंट चूज करते हैं, तो क्या हमारी गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है हमें सुपर पावर बनाने या ना बनाने के लिए?
ये एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सी बेसिकली अगर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, that will cause more of the tribal people moving out of their areas. अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें, उन्होंने अपने क्या बोलते हैं गवर्नमेंट उन्होंने बहुत पैसे खर्च किए, लगभग अराउंड thousands of crores rupees, बट वहाँ से जो ट्राइबल पीपल, द वनकटियास पीपल, जो वहाँ के जो इनहैबिटेंट्स थे, उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया. सो अगर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इंडिया में वो सेंट्रिक पॉइंट्स है. अभी आपको नहीं पता, मीडिया में अभी भी बात नहीं आ रही, बट इफ यू सी अरुणाचल प्रदेश एंड द नॉर्थ ईस्टर्न, द सेवन सिस्टर्स एरियाज में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, बट अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल ऑफ दैट एरिया. सो सी बेसिकली फोकस यही करना है कि हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टैप करना है, बट क्यों नहीं हम टाइडल एनर्जी पे फोकस करते हैं, जो कि थोड़ा सा मोर सेफ एरिया है. क्योंकि ओशंस में ऑब्वियसली वहाँ पे फौना है, बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे कोई आदमी रह रहा हो या इतना फौना हो कि क्या बोलते कोई नुकसान हो रहा हो. क्यों नहीं हम लोग टाइडल अगर इंडिया अपना इंटरनेशनल लेवल पे बनाना चाहिए, दैट टू एट दिस मोमेंट की जहाँ पे वी हैव क्लाइमेट चेंज पे बहुत फोकस किया जा रहा है. छोटे बच्चे ग्रेटा थनबर्ग. So why not we focusing more on eco-friendly things? Tidal energy है, wind energy पे भी हम फोकस कर सकते हैं. जहाँ हाई क्या बोलते हैं joules of आपके क्या बोलते हैं स्पीड ऑफ क्या बोलते हैं विंड है, जहाँ पे ज़्यादा क्या बोलते हैं प्रेशर ऑफ विंड आता है, वहाँ पे हम क्यों नहीं फोकस कर सकते हैं? माउंटेनियस रीजन में क्यों नहीं हम लोग सोलर पावर यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग, but we have to more focus on eco-friendly natural resources. We have to stop mining coal main factor है जो इंडिया का pollution बढ़ा रहा है. ये coal mining है जो main